Okay, so let me start today's session. Good evening, all. Welcome to Ganitagya Academy. Myself, Professor Hitesh, and let me start today's session. Today we are starting exponents and power. Okay, our new chapter name is exponent and power. ठीक है, चलिए. So before that, let me tell you some basic things. So first of all, let me tell you that you are having any value that is, let us say, a. ठीक है. So if you are having a to the power b, what does it mean? It means a multiplied in itself b times. Am I correct? If you are having 10 square, it means 10 into 10 2 times. If you are having 10 cube, then it will be 10 into 10 into 10. Okay. If you are having 2 raised to 4, it means 2 into 2 into 2 into 2. Understood? चलिए, number one thing. So if you are having a to the power b, it means a multiply b times, है ना? a multiply b times. Okay, number one. Number two is 1 upon a is known as a raised to minus 1. ठीक है, 1 upon a को हम कहते हैं a raised to minus 1. ठीक है. Similarly, if a raised to minus b, so I will write it 1 upon a raised to b. Okay, please remember it. Now, number 4. If you are having a to the power bc, it means a to the power b and its power c. Okay, or it is as good as a to the power c and uski power b. Understood? So this is the meaning of a raised to bc. Okay. Now, fifth one. If you are having a raised to b into a raised to c, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? a is multiplied in itself b times and a multiplied c times. So can we say equivalently a multiplied b plus c times? So power will be added. Understood? Please write it down, these 5 things, and then we will solve some questions and we will repeat it. अच्छे समझ लीजिए, लिख लीजिए. Okay, so let me clear this. This is very much clear now. So can you tell me what is the value of number one question? 10 square into 10 raised to power 3. What is the answer? Number one. Number two, if you are having 10 raised to 2, its cube. So what is the answer? Number three, let me write 0.01. So 10 raised to क्या आएगा इसके पावर में? That we have to find out what will be the power. Number 4, if you are having 0.01 into 0.002, what will be the value of this? Okay, चलिए ये 4 क्वेश्चन करते हैं. चलिए, so let me try. So number 1 is 10 raised to 2 into 10 raised to power 3. So अभी हमने क्या देखा था? That a raised to b into a raised to c. क्या लिखा था हमने अंजलि इसको? We have written it a raised to b plus c. ठीक है, we have written a raised to b plus c. So ये क्या हो गया? 10 raised to 2 into 10 raised to 3. So ये हो गया a is 10, a is 10, b is 2, c is 3. So can we write 10 raised to 2 plus 3? That is 10 raised to 5. Isn't it? First one is clear. Any doubt? Let me know. Now, Yes, sir, clear. clear na? Now, second, a raised to b, its power c. So we have written a raised to bc. So it is 10 raised to 2, its power 3. So it means 10 raised to 2 into 3.
सो इट इज 10⁻6, 2 into 3 6। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमको लिखना है इसकी एक्सपोनेंट क्या होगा। सो व्हाट विल बी द पावर, चलिए दैट इज आवर क्वेश्चन। चलिए सो अभी Yes, sir. हमको है ना नेक्स्ट लिखना है 0.01। सो अभी हम क्या लिखते हैं 0.01 को, सी 0.01 कैन आई राइट इट इज 1/100। एम आई क्लियर? सी 1/10 क्या होता है 0.1, 1/100 is 1/100, 1/01 is 1/100। So I can write it 1/10 square. Am I clear? 100 is 10 square, so it is nothing but 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट में, वी विल राइट 10⁻²। कोई डाउट है इसके अंदर? सोच लीजिए, बताइए। No, sir. क्लियर? चलिए वेरी गुड। ओके, सो दिस वन अप टू दिस वन क्लियर। ठीक है, अब देखिए 0.01 को हमने लिखा 10⁻²। ठीक है, सो इसको हम लिख देंगे 10⁻² इंटू क्या बचा 0.02। चलिए ध्यान दीजिए, 0.002 को हमने लिखा 0.001 इंटू 2। कोई डाउट है इसके अंदर? हमने लिखा 0.001 इंटू 2, सो 2 सेम, 0.001 को लिख दिया 1/1000। ठीक है, सो यहाँ पर जो 1000 है ना, अंजलि ध्यान दो, अगर 10 के साथ में जितने जीरो हैं वो 10 स्क्वायर हो जाएगा। अगर 10 है तो वो हो जाएगा 10 की पावर 1। अगर 3 जीरो सो इट विल बी 10 क्यूब। इफ इट इज 4 जीरो देन इट विल बी 10⁻4। समझे? तो ये हो जाएगा 10⁻3। सो 1 अभी हमने बताया है कि 1/a⁻b ये होता है a⁻−b। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या है 1/10⁻3, तो हम लिखेंगे 2 × 10⁻−3। समझे? तो यहां से निकल के आया 2 × 10⁻−2 इंटू 10⁻−3। अगर बेस सेम हो यानी मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर क्या होती है ऐड। देखो यहाँ पर बताया हमने, ध्यान दो, a⁻b इंटू a⁻c इक्वल टू a⁻b प्लस c, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻−2 -3 कितना -5। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, करिए, लिखिए। ओके, तो दिस मच कंप्लीटेड, लेट मी क्लियर दिए एंड लेट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, सो एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी, द क्वेश्चंस आर, चलिए मैं सारे क्वेश्चन साथ में लिखता हूं। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इवेल्युएट 3⁻²। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको हमने फॉर्मूला क्या बताया था, a⁻−b इज इक्वल टू 1/a⁻b। रिमेंबर दिस वन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी हायर एजुकेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो 3⁻², तो यहाँ पर a है 3, b है 2, सो इट विल बी 1/3⁻²। सो 3 स्क्वायर कितना होता है 3 × 3 दैट इज 9। ठीक है, राइट इट डाउन। ओके, सो दिस मच डन, नो डाउट इन दिस। चलिए, तो 1/9 इज द आंसर। फर्दर अगर इसको बोलते हैं फ्रैक्शन में, दिस आंसर इज इन फ्रैक्शन। इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहो सो 1/9 विल बी, आप निकाल सकते हो, है ना, 0.101 समथिंग आएगा। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट इज अगेन सेम फॉर्मूला, सो इट विल बी -4 की पावर -2, सो इट विल बी 1/-4 की पावर 2। ठीक है, चलिए, अब हमेशा याद रखिए किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर भी होता है पॉजिटिव, एंड a स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही सही।
सो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, दैट यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट नो। ऐसा क्यों है, ध्यान दीजिए, दिस इज नथिंग बट माइनस ए इंटू माइनस ए, सो ए इंटू ए स्क्वायर, -1 इंटू -1 इज +1, सो इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो नाउ इट इज 1/-4 का स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट 1/4 स्क्वायर, समझे? इट इज 1/16। ठीक है, नो डाउट? No, sir. Done. वेरी गुड। ठीक है, नाउ थर्ड वन, चलिए। सो इट इज, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे, चलिए आप लोग बताइए, लेकिन कोशिश करिए पहले, फिर मैं बताऊंगा आंसर। यस, हुआ आप लोगों का? चलिए मैं बताता हूं क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको हम देखिए, अभी हमने लिखा था, अभी -5 को भूल जाइए, फॉरगेट -5, 1/2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/a को, अभी क्या बताया था हमने, ध्यान दीजिए, 1/a को आई कैन राइट a⁻1, ठीक है। सो 1/2 को आई कैन राइट 2⁻1, नो डाउट इन दिस, isn't it? 1/2 को I can write 2⁻1. So it is nothing but 2⁻1 to the power -5. ठीक है अंजलि, कोई डाउट है? So now I told you a⁻b उसकी पावर c, that is a⁻b into c. This is also clear. So it is 2⁻1 to the power -5. Hence I can write 2⁻1 into -5, that is 2⁵, and 2⁵ कितना होता है, 32। तो 32 हो गया थर्ड वाले का आंसर। राइट इट डाउन, लेट मी नो व्हेन डन। ओके, Yes, sir. Done. वेरी गुड। चलिए लेट मी क्लियर दिस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, a⁻b, सो b जो है वो हो गया एक्सपोनेंट, b इज एक्सपोनेंट, ठीक है। सो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के टर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए तो कैसे लिख पाएंगे, चलिए हाँ ओके, लिखा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, फर्स्ट वन इज -4 to the power 5 डिवाइड बाय -4 to the power 8, ठीक है। -4 to the power 5 डिवाइड बाय -4 to the power 8. So let me define it here, -4 to the power 5 upon -4 to the power 8. अब ध्यान दीजिए अच्छे से, a⁻b इंटू a⁻c, क्या लिखा है हमने, a⁻b plus c, नो डाउट। नाउ a⁻b अपॉन a⁻c को हम लिखेंगे a⁻b minus c, ठीक है। अच्छे समझ के लिखिए। वाई वी कैन राइट इट, लिसन, आई कैन राइट इट a⁻b इंटू a⁻c, क्यों, बिकॉज 1/a⁻c is a⁻c, that's why a⁻b into 1/a⁻c is a⁻c, so it will be a⁻b minus c, ठीक है। so this is done. So 4⁻5 डिवाइड बाय -4⁸, इसको हम लिखेंगे -4 की पावर 5 -8, तो कितना आया, -4 की पावर -3, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सपोनेंट मस्ट बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आई विल राइट इट 1/-4 की पावर 3, अंडरस्टूड, कैन आई राइट इट। सो आंसर इज 1/-4 की पावर 3, ठीक है। चलिए यहां पर आंसर खत्म होता है आपका जो पूछा है, बट आई एम एक्सपांडिंग इट, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता रहा हूं आंसर, ध्यान दीजिएगा।
So it is nothing but 1 upon -4 into -4 into -4. समझे? -4 की पावर क्यूब मीन्स -4 into -4 into -4. So -4 into 4 into 4, 4 क्यूब कितना होता है? 64. अब -1 प्लस 1 हो गया एंड देन माइनस. सो दिस इज -1 upon 64 इज द आंसर. लेकिन अभी तक हमसे क्या पूछा है? जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर ये है. फॉर दिस एक्स्ट्रा वी डिड. अंडरस्टूड? राइट इट डाउन. इसको ब्लॉक में लिखिएगा. दिस इज नॉट अवर करंट आंसर, दैट इज फॉर एक्स्ट्रा. ठीक है, राइट इट डाउन. चलिए, सो लेट मी क्लियर. वेरी गुड, रिटन डाउन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज 1 upon 2 raised to cube का स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन इज -3 raised to 4 into 5 upon 3 raised to 4. चलिए दोनों को सॉल्व करिए. ट्राई एट योर एंड फर्स्ट. चलिए लिखा. ओके, सो सेकंड वन इज 1 Second upon, answer हाँ 1 बोलिए, upon 64. 1 upon. 64. वेरी गुड, वेरी गुड. सो अभी हाँ, वेरी गुड, दैट इज द फाइनल आंसर. पहले हम अभी दो पार्ट में लिखेंगे आंसर. फर्स्ट वन क्या है? जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, वी नो a raised to b की पावर c इज a raised to b into c. ठीक है, सो 1 upon 2 क्यूब की पावर 2 इज नथिंग बट 1 upon 2 raised to 6. यहां पर हमारा ये आंसर खत्म हो गया. नाउ 1 upon 2 raised to 6 को सिंप्लीफाई, आई कैन राइट 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब. सो 2 क्यूब कितना होता है? 8. So 8 into 8, that is 1 upon 64. So that is the final answer. Okay, that is correct. Very nice. But if you will read the question में हमको ये निकालने को बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन को एंड करना है. This is for our understanding. ठीक है, 1 upon 64 is for our understanding. लेकिन क्वेश्चन हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? अगर ऐसा तो we have to write like this. If in this pattern we will write like this. ठीक है, चलिए. Now next is थर्ड का आंसर आया. चलिए, सो लेट मी राइट. अब देखिए, -3 raised to 4 इंटू, इसको आई कैन राइट 5 raised to 4 अपॉन 3 raised to 4. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए. सो द प्रॉब्लम इज माइनस की, माइनस जो भी है, माइनस की पावर 2 इट विल बी +1 ओनली. -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 4 +1, -1 की पावर 5 -1. मतलब हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं. ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, दैट -1 to the power n is equal to -1 और +1. +1 कब होगा? if n is even. okay, and -1 when n is odd. ठीक है, बहुत अच्छे से लिखिए इसको. okay, so this one I must clear, है ना? it will be congested. ठीक. so the point is this is the funda you must remember. okay, now हमारा क्वेश्चन क्या है? our question is -3 raised to 4 को हम लिख सकते हैं 3 raised to 4. कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? बिकॉज आई कैन राइट इट -1 to the power 4 into 3 raised to 4. so -1 to the power is +1, 3 raised to 4, hence it is 3 raised to 4. ठीक है. नाउ अब हमारे क्वेश्चन में क्या है? -3 raised to 4, 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 raised to 4. so I will write it, -3 की पावर 4 को भी क्या लिखेंगे? 3 raised to 4. तो ये हो गया 3 raised to 4, 5 की पावर 4, 3 raised to 4. this will cancel same. so 5 raised to 4 is the our answer.
क्या है हमारा आंसर 5/4, तो इसको हम लिखेंगे 25। यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो गया। दिस इज अवर आंसर। नाउ just for simplification I am writing it further, so 25 into 25 that is 625. ठीक है, write it down. Sir, done. चलिए, वेरी नाइस। सो लेट मी क्लियर इट। अच्छा, अभी हमने इसको जो कैंसिल किया है ना 3/4 और 3/4 को, इसका हम एक और तरीका बताते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने 3/4, 5/4, 3/4 में हम दोनों, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अगर इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे? मोर टेक्निकल, a/b अपॉन a/c। क्या लिखा है हमने? a/b माइनस c। सो आई विल राइट इट 3/4 माइनस 4 इंटू 5/4। अंडरस्टूड? सो ये हो गया 3/0 एंड 5/4। सो ध्यान रखिए, a/0 is always 1। a कुछ भी हो, for all values of a की किसी भी वैल्यू के लिए a/0 क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए, सो 3/0 कितना हो गया? 1। सो 1 इंटू 5/4, सो दिस इज 625, है ना? दिस इज सेकेंड पैटर्न। राइट इट डाउन। चलिए, वेरी नाइस। सभी ने लिखा साथ में? वेरी गुड। सो लेट मी क्लियर दिस। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? सो ये याद रखिएगा कि a/0 क्या रहेगा? 1। ठीक है, तो अभी तक जितने फॉर्मूले लिखे हैं फिर को फटाफट से रिवाइज करो। नंबर 1 a/b इंटू a/c। नंबर 2 a/b अपॉन a/c। नंबर 3 1 अपॉन a। नंबर 4 a/b टू द पावर c। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट वन का a/b प्लस c, सेकेंड वन का a/b माइनस c, थर्ड वन का a/-1, फोर्थ वन का a/bc। फिर क्या देखा? 5 -1 की पावर n इज इक्वल टू -1 फॉर n इज इक्वल टू ऑड, +1 इफ n इज इक्वल टू इवन। ठीक है, नंबर 6 0 पावर ऑफ एनी वैल्यू इज ऑलवेज 1। ठीक है, सो दिस फॉर्मूलेस जो हम आपको बताते जा रहे हैं वो साथ में लिखते जाना, सो इट विल बी मोर कंफर्टेबल, है ना? चलिए, हाँ, एक और देखिए, 7th। दिस इज न्यू, a/b इंटू c/b। सो इट विल बी, देखो ध्यान दो, 3² इंटू 3³ सो इट विल बी 3 क्या हो जाएगा इसके अंदर? इट विल बी, नहीं, पावर से बताना चाह रहे हैं हम, 2 मिनट। इफ इट इज 4/2। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? वी विल 3 राइट इट, into 4 यस, exponent common. वेरी गुड, वेरी नाइस। सो इट विल बी 12², सो इट विल बी 144। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। सो लेट मी क्लियर दिस, है ना? ये इन सब फॉर्मूलेस को बार बार रिवाइज करते जाओगे, देन ओनली वी विल बी इनफ कंफर्टेबल इन दिस, है ना? तो केवल एक बार लिख के नहीं, बार बार लिखते जाएंगे, जितनी बार आएगा सो ब्रैकेट में तो अच्छा रहेगा, जितना प्रैक्टिस उतना बढ़िया। चलिए, सो नाउ 3 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। नाउ 4, 5, ओके। चलिए, करिए सॉल्व, टेक 1 मिनट टाइम, देन आई विल सॉल्व। एनी आंसर? चलिए, लेट मी ट्राई। सो 3⁻⁷, 3⁻7 अपॉन 3⁻10 इंटू 3⁻5। ठीक है, सो बॉडमॉस रूल भी याद रखना पड़ेगा आपको। ब्रैकेट है
सो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 3 रेज टू माइनस 7, 3 रेज टू माइनस 10, ठीक है। सो क्या करेंगे सबसे पहले दिस वन। सो 3 raised to minus 7 upon 3 raised to minus 10. So it will be 3 raised to minus 7 minus minus 10. Remember, a raised to b upon a raised to c is a raised to b minus c. So 3 raised to minus 7 minus minus 10, ठीक है, into 3 raised to minus 5. So it will be 3 raised to minus 7 plus 10. पता है ना, a minus minus b is a plus b. Remember, चलिए into 3 raised to minus 5 into 3 raised to minus 5. So it will be 3 raised to 10 minus 7 is 3 into 3 raised to minus 5. So it is 3 raised to 3 minus 5. So it is 3 raised to minus 2. So that is 1 upon 3 square, 1 upon 9 और 1 upon 3 square, है ना। यहाँ तक हमारा आंसर गलत कंप्लीट हुआ एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। लेकिन अभी हमको क्या बोला था, रिजल्टिंग पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। चलिए ओके, कंप्लीटेड सबका ना। चलिए तो फोर्थ वन कंप्लीटेड, नाउ ट्राई फॉर फिफ्थ वन। चलिए सो फॉर फिफ्थ वन व्हाट आई विल डू, फॉर फिफ्थ वन 2 raised to minus 3 and minus 7 raised to minus 3। अभी बताया था क्या क्या आपको बताया था हमने, a raised to b into c raised to b, माइनस 3 यहाँ पर माइनस 3 यहाँ पर, मीन्स एक्सपोनेंट इज कॉमन। सो एक्सपोनेंट अगर सेम होते हैं तो क्या होता है, a इंटू सी इट्स पावर b, ठीक है। सो इट विल बी 2 इंटू माइनस 7 और उसकी पावर माइनस 3। सो इट विल बी माइनस 14, है ना, की पावर माइनस 3। सो आई कैन राइट इट 1 अपॉन माइनस 14 क्यूब, 1 अपॉन माइनस 14 क्यूब, क्योंकि एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव रही है ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब 14 क्यूब कितना होता है वो आप निकाल लीजिए, इट विल बी माइनस 14 क्यूब, क्योंकि पता है ना माइनस 14 को आई कैन राइट माइनस 1 इंटू माइनस सॉरी माइनस 1 इंटू 14, माइनस 1 इंटू 14। सो माइनस 14 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब 14 क्यूब। अब माइनस 1 का क्यूब 3 क्या है ऑड, सो माइनस 1 एंड 14 क्यूब, तो 14 क्यूब कितना होता है वो निकाल लीजिए, है ना। 2304 होता है आई गेस, या फिर क्या, अभी हमने शायद तक लास्ट लेक्चर में क्यूब रूट में किया था ना, कितना आया था, आई गेस 2744 आता है, एक बार चेक कर लेना जो भी, ठीक है। I don't remember but I must say it must be 2744, ठीक है। अभी हमने इस क्यूब रूट वाले चैप्टर में किया था ना इसको, ठीक है। सो दिस इज आई कैन राइट 1 अपॉन माइनस 2744। Yes, sir, 2744. Perfect then. So fifth one is also completed. Write it down. Okay, very good, very nice, very good speed. Chali, so let me clear this. Okay, so the next is find the value of, these are the questions. Chali, I have written all questions together, so let me solve one by one. Take 1 minute time and then try to solve, then I will answer. चलिए Yes, लेट मी sir. डिस्कस, वेरी गुड। चलिए हम डिस्कस करते हैं, चलिए आप खुद सोचिए। फर्स्ट वन इज, देखिए आपको पता है किसी का पावर 0 कितना होता है 1,
सो 3 raised to 0 ये तो 1 हो गया. So we are having 3 raised to 0 plus 4 raised to -1 into 2 square. ठीक है. चलिए, आपको पता है a plus b into c. I can write ac plus bc, distributive law we know. ठीक है. तो 3 raised to 0 को हमने लिख दिया 1 प्लस 4 की पावर -1. कैन आई राइट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड उसकी पावर -1. इट मीन्स 2 raised to -2. कोई डाउट इसमें यहां तक? No, sir. ठीक है. No. सो 4 raised to -1 को हमने लिखा 2 raised to -2 इंटू 2 स्क्वायर. ठीक है. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूले से, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो क्या मिलेगा 2 स्क्वायर इंटू 1, 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर -2, 2 की पावर +2. सो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 2 -2 प्लस 2, that is 2 raised to 2 plus 2 raised to 0. 2 minus 2 0. So कितना हो गया 2 raised to 2 is 4 plus 2 raised to 1, 2 raised to 0 is 1. So answer is 5. समझे सभी लोग अच्छे से? चलिए, ये एक तरीका हो गया. सेकंड मेथड बताता हूँ, थोड़ा और इजी करने की कोशिश करते हैं. लिखिए, लिखा इतना Yes, sir. दोनों ने? Yes, sir. चलिए, so let me clear this. चलिए, सो अदर मेथड क्या हो सकती है देखिए. 3 raised to 0 प्लस 4 raised to -1 इंटू 2 raised to 2. चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगाना ही है. a प्लस बी इंटू सी इज ए सी प्लस बी सी, ये तो हमको लगाना ही है. ठीक है. सो 3 raised to 0 1 पता है. 4 raised to -1 को मैं लिख दिया 1/4 इंटू 2 स्क्वायर को लिख दिया 4. सो और इजी हो गया. ये हो गया 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस 4 इंटू 1/4. सो इट विल बी 4 + 1 दैट इज 5. दैट इज कंपेरेटिवली इजी, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा अच्छा था. एंड दिस इज फॉर आंसर, क्विक आंसर. ठीक है. चलिए, राइट इट डाउन. लेट मी नो व्हेन डन. Sir, done. चलिए, सभी ने? Yes. Yes, sir. चलिए, so let me clear this. Now second one. चलिए, second one क्या है 2 raised to -1 into 4 raised to -1 डिवाइड बाय, अब ब्रैकेट है then 2 raised to -2. ठीक है. सो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. 2 raised to -1 को लिख दिया 1/2. 4 raised to -1 को 1/4. नाउ डिवाइड बाय 2 raised to -2. ठीक है. कंप्लीटेड. ठीक है. चलिए, सो इसको हमने लिखा 1/8. 1/4 इंटू 2 दैट इज 1/8 डिवाइड बाय, इसको हम लिख देंगे 1/2 स्क्वायर. अंडरस्टूड ना? a raised to -b is 1/a raised to b. ठीक है. नाउ 1/8 is 2, 1/4. अब 1/8 is to 1/4, इसका मतलब क्या है 1/8 डिवाइड बाय 1/4. ठीक है. तो 1 डिवाइड बाय 1/4 इसका तो मीनिंग 1/4 क्या है 1/8 डिवाइड बाय 4 raised to -1. अंडरस्टूड? इसका मतलब ये है कि 1/8
and multiply by 4. It means 1/2. 1/2 is the correct answer. सोच लीजिए, बताइए कुछ प्रॉब्लम है क्या? No, sir, done. कंप्लीटेड Yes, sir. Completed. है ना? समझ पा रहे हो ना? ये यहाँ से यहाँ ये वाली स्टेप ही सबसे बस थोड़ा सा दिक्कत देती है, बाकी और नो इशू. समझे ना ये वाला? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए लेट मी क्लियर दिस नाउ. थर्ड वन इज वेरी इजी. सी 1/a की पावर माइनस b इज नथिंग बट a रेज टू b. ठीक है, ध्यान रखिए इसको. कैसे लिखा हमने, ध्यान सोचो. 1/a की पावर माइनस b का मतलब है 1/a को लिख दिया a इनवर्स. क्या लिख दिया? a इनवर्स, और उसकी पावर माइनस b. सो इट इज a रेज टू -1 इंटू माइनस b. सो इट इज a रेज टू b. ठीक है, सो इट मीन्स 1/2 की पावर -2 है ना. चलिए मैं यहां पर लिखता हूं. फर्स्ट क्या है, a रेज टू 1/2 की पावर -2, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2. So I will write it 2 raised to -1 power -2 plus 3 raised to -1 power -2 plus 4 raised to -1 power -2. So I can write it 2 raised to 2 -1 into -1 plus, so +2, then 3 square, then 4 square. So it is 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16. So it will be 29 is the answer I am getting. Is it correct? Or doubt any? चलिए write it down. Ask me if any doubt. चलिए, so let me clear this now. चलिए, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन करिए सॉल्व. आप थोड़ा माइंड यूज करिए. The fourth का आंसर 1 होगा. वेरी गुड. आप इसको सॉल्व करके कुछ भी आंसर लाइए. आप इसको सर सॉल्व बाद में रेज टू दी पावर वेरी बनाएगा. गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. सो ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 जो भी आंसर आया उसकी पावर 0 होगी. सो इट विल बी 1 है ना. कुछ भी वैल्यू होगी यहाँ पर उसकी पावर 0 है तो आंसर विल बी 1. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. नाउ फिफ्थ वन. सो चलिए वेरी इजी. सो इट इज -2/3 की पावर -2 की पावर 2. सो अभी हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि a रेज टू b की पावर c इज a रेज टू bc. ठीक है, डाउट इन दिस. चलिए नंबर 1 फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए. ये जो ब्रेक इसको आखिरी में सॉल्व करेंगे. पहले क्या है, -2/3 की पावर -2. ठीक है, सो आई कैन राइट इट 3/-2 की पावर 2 एंड उसकी पावर 2. समझे क्या? एनी डाउट इन दिस? ये -2/3 को -3/2 लिख दिया और ये जो -2 है उसको प्लस कर दिया. अंडरस्टूड? सो नाउ इट इज 3 स्क्वायर अपॉन -2. अच्छा नहीं, एक और सिंप्लीफिकेशन फिर से बाद में पावर करेंगे. इससे पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये फंडा यूज कर लो. सो a रेज टू b की पावर c. सो इट इज 3/-2 की पावर 4. सो इट इज 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, क्योंकि -2 की पावर 4 इज +1 ओनली, क्योंकि 4 क्या है, इवन नंबर. सो इट विल बी 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4. 3 की पावर 4 होगा 9 into 9 दैट इज 81
और ये होगा 4 into 4 that is 16. So 81/16 is the answer I am getting. ठीक है, write it down. Sir, done. Very good. Yes, sir. So let me clear this. Now, question number next. Evaluate. चलिए, this is the last question for today. Solve it. Then I will give you homework. चलिए, so 8 raised to -1 and 2 raised to -4. देखिए बिल्कुल सिंपल समझिए, जब भी आपको 8 raised to -1 मिला उसको 1/8 लिख दीजिए, 1/2 raised to -4 लिखा तो उसको 2 raised to 4 लिख दीजिए. अभी तो समझने लग गया अच्छे से. I will give you so many practice questions and we will solve. After this we will, in the revision class we will solve so many questions. So this will be practice much. ठीक है, चलिए. So first one is 5 raised to 3 को सेम रहने दीजिए, 8 की पावर -1 को 1/8 लिख दीजिए और 2 की पावर -4 को लिख दीजिए 2 की पावर 4. ठीक है, सो इट विल बी 5 क्यूब. सो 5 क्यूब कितना होता है? 5 क्यूब होता है, चलिए और सिंप्लीफिकेशन, चलिए 5 क्यूब होता है 125, है ना. 5 into 5 into 5 दैट इज 125 into 2 raised to 4 क्या होता है? 16/8. So it is 125 into 16/2 that is 16/8 that is 2. So it is 125 into 2, so that is 250. So this 250 answer I am getting. Correct है क्या? कोई डाउट हो तो बताइए. Any No, written? sir. Let me know. Yes, sir. No. Written down? Yes, sir. Yes, sir. सभी समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Very good. चलो, so now second. 5 raised to -1. हाँ, क्या बताया अभी आपको हमने? जब भी ये दिखे 1/, लिख दीजिए. So 1/5 into 1/2 into 1/6, है ना. ठीक है, वेरी इजी. तो 1/10, 5 into 2 is 10 into 1/6, so it is 1/60. So this is the answers for question number. Sir, done. Okay, very good. चलिए, so let me clear this. Okay, चलिए. So next question is find the values of, sorry, हाँ, very easy question. Find the value of m for which 5 raised to m. See, very easy question. 5 raised to m upon 5 raised to -3 is equal to 5 raised to 5. ठीक है, चलिए LHS में क्या आप बोल सकते हैं a raised to b upon a raised to c. I can write a raised to b minus c. ठीक है, so it will be 5 raised to m और ये -3 है, so -3 is equal to 5 raised to 5. Understood or any doubt? ठीक है, so 5 raised to m -3 is m plus 3 और 5 raised to 5. so बेस सेम है, एक्सपोनेंट दोनों के सेम होना चाहिए अगर इक्वल में है तो. so m plus 3 must be equal to 5. m plus 3 must be equal to 5. Hence m plus 3 equal to 5. So m will be 5 minus 3, that will be 2. That is the correct answer. Write it down. Sir, done. Very nice. Yes, sir. Done. Okay, let me clear this now. चलिए, this is first and second. So you can take this question as a homework. Okay, and I will give you one more question as a homework so that our exercise, this exercise will be completed. Okay, this is first question, homework question. 7th question I am writing here. Then you can take a screenshot and, है ना, चलिए, या फिर आप लिख भी सकते हो. 7th question is simplify.
Seventh question is simplify. Number 1 is 25 into t raised to minus 4. ये t एक वेरिएबल है. Divide by 5 raised to minus 3 into 10 into t raised to minus 8. t raised to minus 8 है ना. फर्स्ट वन क्वेश्चन. एंड गिवन t नॉट इक्वल टू 0. बस वो तो लिखने के लिए है कि 1 अपॉन, जब ये t रेस टू 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है इसलिए ऐसा लिखा है, कि इनफाइनाइट नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन इज 3 रेस टू माइनस 5 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 5 इंटू 125 डिवाइड बाय 5 रेस टू माइनस 7 इंटू 6 raised to minus 5. चलिए, so these are the your homework questions. We will solve in the next class before starting of the class. ठीक है? So write it down, try to solve it and post these questions on our WhatsApp group, or you can WhatsApp me on my number. ठीक है? चलिए, bye bye, take care. Write it down. Okay, sir. Thank you, sir.